Hi everyone, so let's do your no contact. Finally, I saw a few comments ki no contact karo, even though I don't like doing this reading at all. But okay, we're going to see the no contact thing and whether your person is going to come back or not. Okay, and because I'm also doing this because इस time पे energies बहुत ज़्यादा high हैं because of Venus retrograde as well. So a lot of us might be feeling anxious. So let's do it. Sorry. What is your person thinking about you is what I'm checking first. Let me clarify something. You know what? For some, if I talk about what are they thinking about you, यहाँ पे मुझे दो situations clearly दिखाई दे रही है. पहली situation जो है वो ये है कि कहीं ना कहीं this person is showing you that they are waiting for you. ओके या ये कुछ कुछ तो ऐसा दिखा रहे हैं कि कुछ ये अपनी लाइफ में ऐसा कर रहे हैं, they are living their best life and this and that, something of that sort they might be showing you. ओके एक मिनट, मुझे एक चीज़ चेक करनी है. No. Okay, you know what? Your person, if I talk about what are they thinking about you, they are not thinking about you right now. ओके ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है या फिर प्रॉबेबली इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं बट ये ऊपर से दिखा नहीं रहे हैं. मे बी दिस पर्सन इज शोइंग दैट दे आर वेटिंग और दे आर जस्ट वर्किंग ऑन देम सेल्व्स एंड दिस एंड दैट, बट ये आपको भनक भी नहीं देना चाहते हैं अबाउट द थर्ड पार्टी सिचुएशन और हाउ दे आर फीलिंग अबाउट द थर्ड पार्टी सिचुएशन, बिकॉज समहाउ दिस पर्सन इज फीलिंग दैट they are very much in power right now. Okay, there's some new connection that has entered into their life and probably your person has chosen someone else over you. ओके ये एक एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है. ओके ऐसा हो सकता है ये स्पेशली उन लोगों के लिए. आई थिंक कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है कि या तो आपके पर्सन की शादी किसी और से हो चुकी है या आपके पर्सन किसी और के साथ है. इस टाइप का आपको डाउट है कहीं ना कहीं. एंड हियर आई डेफिनेटली फील दैट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू फील रियली. इस टाइम पे इसकी पर्सन की जो पावर है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. एंड ये पावर क्या है? दिस इज़ अ डोमिनेंस. ओके दिस पर्सन लव्स to be the dominant person. Okay, and this is what they get to be when they are with this new person. So इस person को कहीं ना कहीं ऐसा, and also this person is using this new relationship to heal themselves. ओके अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस फील करवाने के लिए यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हो रही हैं. एक ये एनर्जी भी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लग रही है. हो सकता है कि या आई मीन देयर इज सम इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैमिली. इफ़ देयर इज़ नॉट थर्ड पार्टी सिचुएशन, कुछ तो इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रही है. एंड आई वेरी स्ट्रांगली फील दैट दिस पर्सन, योर पर्सन इज़ राइट नाउ फीलिंग दैट
they are only and only going to think about their own wish. They are only and only going to think about what suits them, what is going to make them happy. Okay, तो उस चीज़ के अंदर पहले इनको स्ट्रगल लगता था. Let me tell you this, okay, not that this person was not the same or this person was different with you और आपके साथ ये person अलग थे, वो real self थी. No, this person has always struggled with choosing themselves. Okay, always. And now something has happened जहाँ पे इनका brim point इतना ज़्यादा आ गया है that they have completely given up on the fact that I'm not going to choose myself. Now they are into this very strong firm belief that I am only and only going to choose myself. So even if this person is choosing the other person, they just know that they are choosing themselves. Okay, they are choosing their own comfort. It's not about you, it's not about the other person, it's more about what makes them feel more comfortable. Okay, so this is what is happening. Let me see, what do you need to know about this connection that you're dealing with? You know what, you don't have to do anything at all. Okay, you don't have to do anything at all. You should know your worth, and your worth should never decide कि एक person ने किसको choose किया किसको नहीं किया. Please end this battle in your head if there is any. Okay, you really need to be in your carefree energy. You really need to just relax. कुछ मत करो, भगवान के लिए कुछ मत करो. अगर आपको इस टाइम पे आपको लग रहा होगा कि यार मैं ऐसे कैसे बोल सकती हूँ, आपको एंग्जाइटी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट ऑनेस्टली फर्स्टली इफ़ यू वर्शिप माँ दुर्गा, इफ़ यू वर्शिप माँ काली, यू डोंट हैव टू बी स्केर्ड ऑफ एनीथिंग एट ऑल. यू माइट फील, और यहाँ पे आपको जो चीज़ ट्रिगर कर रही होगी वो हो सकता है थोड़ी बहुत ये कर रही है दैट योर लाइफ इज़ एट स्टिलनेस राइट नाउ. ठीक है, और कुछ नहीं. मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपको यूनिवर्स ने टाइम पीरियड दिया है ना, वो इसलिए दिया है जिससे कि आप अपने आप को इतना ज़्यादा रिलैक्स स्टेट में लेके जाओ, आपका नर्वस सिस्टम इतना ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करे, आप इतने ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करो, एंड दैट शुड बी द बिगेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव योर सेल्फ फॉर नाउ. ओके, सो योर फोकस, आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि ओ माय गॉड मुझे मूव ऑन होना पड़ेगा, ओ माय गॉड माय पर्सन हैज चोजन समवन एल्स, ओ माय गॉड एम आई गोइंग टू फॉल इन लव और नॉट. नो, योर फोकस शुड ओनली बी my god, I just need to, make my nervous system relax. Probably, let me see one thing. How was your life with this person? आप ना इस पर्सन को सिर्फ और सिर्फ प्लीज करते रहते थे. ठीक है, या तो आप बहुत ज़्यादा प्लीज्ड फील करते थे, ठीक है, या आप इस पर्सन को प्लीज करते रहते थे. देयर वाज ऑलवेज समवन, ईदर इट कैन बी यू और इट कैन बी द अदर पर्सन, वेयर यू हैड टू बिकम द मैजिशियन. ओके, एंड आई जस्ट फील दैट ऑलवेज बीइंग अ मैजिशियन एंड दैट टू विद एफर्ट्स, आपको कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो एफर्टलेस लगता हो, बट वो एफर्टलेस था नहीं. बिकॉज क्या होता है, जब भी हमें किसी पर्सन का अप्रूवल लेना होता है, हमें किसी की वैलिडेशन लेनी होती है, तो हम उस पूरे प्रोसेस में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि वो हमें एफर्टलेस ही लगता है. हमें लगता ही नहीं है कि हम वहाँ पे एफर्ट्स डाल रहे हैं. वाई? बिकॉज वी आर वॉन्टिंग टू मेक समवन हैप्पी, एंड इफ दिस पर्सन इज गोइंग टू बी हैप्पी, आई विल बी हैप्पी, दैट काइंड ऑफ एनर्जी. सो यू हैव एक्चुअली स्ट्रगल्ड अ लॉट, ऑनेस्टली स्पीकिंग. सबकॉन्शियसली ऑन योर मेंटल लेवल बहुत ज़्यादा इश्यूज कहीं ना कहीं हुए हैं, आपका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है कहीं ना कहीं, बट यू ऑन कॉन्शियस level you felt really happy. Okay, probably this person was your happiness, but this was not the true happiness. You know why? Because we have 5 of swords here. So either you were catching an energy of people pleasing, where you were kind of pleasing this person, you were being attentive towards this person, you were putting efforts, you were very jolly, very jolly kind of person with this person. But ये जो jolly वाली जो energy थी ना, वो इसलिए थी because this person was actually
फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। इस वो होते हैं ना जैसे सख्त लौंडे जो होते हैं, या जो कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं, लड़कियां तो आई डोंट नो होती होंगी, बट अगर मैं बात करूँ अपने एक्सपीरियंस की जो मैंने देखे हैं, तो जो होते हैं एकदम हाँ माचो मैन टाइप्स, और हमें लगता है कि ओ माय गॉड इसकी बाउंड्री मेकिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। इट बिकॉज व्हेन यू एक्चुअली गेट टू नो द पर्सन, you will see a very different side of this person, okay? You will get to see a very different kind of story. So this person has been a big ego driven person, okay? हो सकता है that this person has also bullied people in their past, okay? या फिर ये बहुत ज़्यादा डरा के रखने वालों में से हैं, you know? एक person जो शांत होता है और एक person जो डरा के रखने वालों में से होता है, दोनों में ना आपको बहुत डिफरेंस दिखाई देगा, एंड वो दिखने में दोनों ही शांत लगेंगे। सो हियर यू वर डीलिंग विद समवन जो आपको लग रहा था कि ओ माय गॉड दिस इज़ द मैस्कुलिन और दिस इज़ अ फेमिनिन, बिकॉज ये पर्सन बहुत शांत है, ये है वो है, बट दिस पर्सन वाज एक्चुअली समवन जो आपको डरा के रखने वाले में से है, या बाकियों को भी, ओके? एंड दैट इज़ वाई आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे। योर इनर चाइल्ड फेल्ट, और योर इनर नोइंग फेल्ट that oh my god, yeah, I'm getting to be that feminine energy, I'm getting to be that playful person here and all of that, and it was a big lie, let me tell you. And आप में से काफ़ी लोग, मुझे ऐसा लगता है कि आप बिलीव भी नहीं करोगे इस चीज़ को लेके, बट माई जॉब इज़ टू टेल यू वॉट इट इज़। बाकी मानना ना मानना आपके ऊपर है। लेट मी सी वेयर what is going to happen next in this connection now, okay? And then we will see whether they are going to come back or not. Baby girl, you deserve love, okay? You deserve love, huh? Or baby boy, like whatever, you deserve love. I have a very strong feeling that you both were having different backgrounds as well. अब वो religious factors हो सकते हैं, आप लोगों की upbringing हो सकती है जो बहुत ज़्यादा different हो. It could be either your upbringing or it could be your way of seeing things, this person's way of seeing things. They both were completely different. Completely different, okay? And no matter how much you feel or try that, no, willpower is not always about working hard or putting efforts. Willpower is also about knowing when to stop and letting go, okay? And this has been like a mantra for me for the last 1 month, and this is what I would also like to tell you. But yeah, whatever. So here we also have forgiving and learning. You need to trust, okay? You need to trust not God, you need to trust yourself. अपनी खुद की पावर, अपनी खुद की एनर्जी, अपनी खुद की चार्म के ऊपर थोड़ा सा तो ट्रस्ट रखो, ओके? यू आर बीइंग लिटरली आस्क्ड टू ट्रस्ट योर ओन फेमिनिन एनर्जी, ओके? जो भी आपके ट्रॉमास रहे हैं, ये रहा है, वो रहा है, अभी प्लीज़ शट ऑल ऑफ देम डाउन एंड जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ. जस्ट सी, एक पर्सन जब प्यूबर्टी हिट होती है, वी आर सो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, राइट? वील डू एवरीथिंग टू मेक आवर सेल्व्स फील बेटर, ओके? So here you just have to trust yourself, you have to trust your way of loving, you have to trust the charm that you have to trust the aura that you carry, okay? आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं करना, आपको भगवान पे ये ट्रस्ट नहीं करना, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, आपको सिर्फ इस टाइम पे अपने ऊपर ट्रस्ट करना है. एंड अंडरस्टैंड that you need to forgive this thing, and forgiveness doesn't mean oh my god मैं तुम्हें पूरे दिल से माफ़ करती हूँ या करता हूँ. नो, forgiveness is selfish,
ओके, फॉरगिवनेस इज व्हाई डू वी फॉरगिव अदर्स, जिससे कि हमारे अंदर वो बिटरनेस क्रिएट ना हो, हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स रहे. दिस इज व्हाई यू नीड टू फॉरगिव, एंड यू ऑल्सो नीड टू लर्न व्हाई दिस कनेक्शन केम इन टू योर लाइफ. एंड द लर्निंग इज what I just told you, to understand that a person that if I keep two Krishnas in front of you, one Krishna is the real God and one is the duplicate of it and nowhere near the original Krishna, but दिखने में वो दोनों same हैं. Okay, so obviously how will you make out कि कौन सा real है कौन सा नहीं, and this is your learning here, this was your learning when it comes to dealing with this person. Okay, so this is what you have to see, that a person who seems stable, is that person really stable from within? Okay, so that is a very important thing, and let me see whether this person is going to come back or not. Okay, so for this I have two cards. Okay, one is this card number 1 and this is card number 2. So you ask this question whether they are going to come back or not, and then pick a card. Pick this is card number 1, this is card number 2, whether they are going to come back or not. Now those who picked the first one, we have the card of 4 of Pentacles. See, I do feel that the person that you're dealing with, either this person is already there in your life. Okay, either you are married to this person but you guys are not connecting with each other, or this person is simply there and this person is only and only money driven, money focused. Okay, or they only and only prioritize money. So yes, they are going to come back, no doubt, but if you are expecting that this person is going to change or anything of that sort, for now, no, they're not going to. But yes, I do see that this person is going to come back. And for the second one, no, your person is not going to come back, because your person is going to stay in victim mentality. That is their comfort zone. Okay, they may feel, they may show others, they may show themselves that, oh my god, I'm going through so much and this and that and blah blah blah, but the truth is they love this kind of pain. Okay, they find pleasure in this kind of pain, they feel comfortable in this kind of pain, because victim बनके अपनी मर्जी करना, उसका कलयुग में मज़ा अलग ही होता है, right? So no, this person is not coming back, and I don't think that you should इवन कॉल दिस पर्सन बैक. अगर ये आएंगे भी ना आपकी लाइफ में, वही टूटे फूटे बन के आएंगे और फिर आप इनको हील करते रहना ज़िंदगी भर. एंड वो जो आपने ये देवदास वाली मूवीज़ और ये सब देखे, अब आप डिसाइड कर लो वेदर यू वांट दिस और यू वांट समथिंग बेटर. लाइक आई सेड दैट यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ. अपनी खुद की एनर्जी, अपने खुद के चार्म, ऑरा में, अपने स्किल्स में थोड़ा सा तो ट्रस्ट रखो, चाहे आप लड़का हो या आप एक लड़की हो. ओके, सो दैट वॉज योर रीडिंग, एंड वन card from the surrender one. What is that you need to surrender? पाइल 1 जिसने चूज किया था उनको क्या सरेंडर करना है, पाइल 2 जिसने चूज किया था उनको क्या सरेंडर करना है. हाँ, पाइल 1, we have surrender your fear of change. A lot of you are fearing. आप में से काफ़ी लोग, मुझे ऐसा लगता है, एक स्टक मैरिज में हो सकते हो या एक स्टक रिलेशनशिप में हो, वेयर यू आर काइंड ऑफ फियरिंग कि अगर आपने इस पर्सन को छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ किसी ना किसी तरीके से ख़राब हो सकती है. सो यहाँ पे आपका भी एक सेल्फिश मोटिव है, उस पर्सन का भी सेल्फिश मोटिव है. ओके, सो यू नीड टू सरेंडर दैट फियर ऑफ योर्स. एंड फॉर द सेकेंड पाइल वी हैव सरेंडर योर डिज़ायर to control people. Please don't just completely drop. Okay, control people is also fixing people.
okay. Controlling people is also कभी कभी दैट यू नो आधी से ज़्यादा बार हमें एंग्जाइटी इस भी वजह से होती है, बट हमें इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं होता. वो ये होता है कि ये पर्सन मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं चल रहा. ओके, एंड इट्स नॉट वेरी डायरेक्ट, इट्स ऑल्सो सबकॉन्शियसली दैट इज़ हैपनिंग. ओके, मैं तो चाहती थी, या मेरी जो फैंटेसी थी, जब आपके फैंटेसी वर्ल्ड से वो चीज़ कनेक्ट नहीं होती है, या जो भी आपने होप्स लगाई थी, and then you crib about it, that is also controlling the situation. So here you just need to let them be, okay. And just don't, I mean, don't try to control anyone, don't have this desire, okay. And controlling here is ये सोचना that this person is going having this expectation that this person is going to do things that means a lot to you. You have to drop that desire of yours, okay. So I think that is it, and I really hope it helps. एक चीज़ और देख दूँ. So this is genuinely for those. Okay, let me say one thing. यार मुझे ना एक ऐसा भी मैसेज मिल रहा है कि कहीं ना कहीं दिस पर्सन जो मैं देखना चाह रही थी वो तो नहीं आया, बट एक मुझे यहाँ पे मैसेज डेफिनेटली आया. वो हो सकता है यूनिवर्स बताना नहीं चाहते, बट जो मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है ना, वो ये मिल रहा है कि इस पर्सन ने ना कहीं आपको ऐसा दिखाया होगा, या ये ऐसा दिखाते हैं कि मैं इतना एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, आई एम नॉट सो एक्सप्रेसिव, यू नो हु आई एम, यू नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम, एंड दिस एंड दैट. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस पर्सन का ये जो वे है कि यार मैं तो इतना दिखाता नहीं हूँ, बट अपने एक्शंस में तो दिखा सकते हो. सो प्रॉबेबली दिस पर्सन हैजंट शोन इन एक्शंस ऑल्सो. और जो भी इन्होंने ब्रेड क्रमिंग की है उसमें आप बहुत ज़्यादा खुश फील करते हो इस चीज़ को लेके. इवन दो ये पर्सन अपना बीच बीच में कंसर्न दिखा सकते हैं, बिकॉज ऑफ क्यूरोसिटी, नॉट बिकॉज दे आर एक्चुअली कंसर्न्ड अबाउट यू, बट बिकॉज दिस क्यूरोसिटी, हाउ इज दिस पर्सन डूइंग विदाउट मी. ओके, सो दैट इज इट. आई डोंट थिंक एनीथिंग एल्स दैट आई नीड टू give you. Now you are smart enough to know, understand well. So that is it. Bye, take care.